Now we will talk about the constitution. We all know the India is a state, union of states. Everyone knows. So may I ask, what is the smallest unit of a nation? Whether a state, whether a city, whether a district, whether a village, whether a colony, or something else. Any idea which is the smallest unit of a nation? Pardon? District is smallest. Any other? Village. Village. Okay. If I say that the smallest unit of a nation is a family, I will be incorrect or correct? Correct. Because फैमिली, कुछ फैमिलियों का समूह जो होता है वो एक गली बन जाती है, फिर कुछ गलियों का समूह वो एक इलाका बन जाता है, उस इलाके का समूह फिर एक बड़ा रूप बन जाता है, फिर शहर, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर नेशन बन जाता है. ठीक है. नाउ इफ आई से इन एवरी फैमिली देयर इज सम रूल, सम कॉन्स्टिट्यूशन. वुड यू एग्री और डिसएग्री? एग्री. बट दीज रूल्स आर रिटन रूल्स और अनरिटन रूल्स? अनरिटन रूल्स. वेरी गुड. इन फैमिली में देखा होगा कि जो पर्टिकुलरली आपकी जॉइंट फैमिलीज है जिसमें 3 जनरेशन रह रही है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट एंड चिल्ड्रन. In some cases, some decisions are taken by at the top level, only by grandparents. Some decisions are taken by only those who are earning member, and some work is done by only females. And some decisions are taken by with the help of the after consultation with all the members, whether it is a minor or adult, irrespective of some decisions are taken. So it's now we can say even to run a family successfully, we need some rule, some constitution. दो इट मे बी अनरिटन. यह तो नहीं हो सकता कि आप कहीं लिखा हो कि मम्मी जी सुबह उठ के पहले तुम्हें उठाएगी, फिर खाना बनाएगी और पापा जी दूध लेने जाएंगे या मम्मी दूध लेके आएगी. राइटिंग में तो होगा नहीं, बट अनरिटन इज देयर कि मम्मी अगर काम भी करती है तो मेड भी देखेगी, या मेड भी नहीं है तो खुद खाना बनाएगी, बच्चे खाना तैयार करेगी. मम्मी ने करना, पापा जी तो कहेंगे कि मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो, ब्रेकफास्ट तैयार करो. यही होता सबके साथ. तो when we can run a family without rule, regulation and constitution, how can we run a country which is so vast without any constitution? So constitution prescribe basic guidelines how the people will be governed by the regime, by the central government, by the state government, by the ruling party. So for that basic चीज़ें और constitution जो divided है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, पार्ट 3. यू आर अवेयर अबाउट पार्ट 3. पार्ट 3 कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 is related to how the government will function, how the government will deal with its citizens, how they will govern the citizens. So, and part 20 is talk about the amendment to the constitution. So now we will deal with this part 20. वाई पार्ट 20 इसके लिए भी बताते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बल हैगा. आपने पिछले साल या 2 साल पहले ये डिस्कशन काफ़ी सुनी होगी टीवी पे. पार्लियामेंटेरियन, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट से पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम. सुना होगा आपने, टीवी पे सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम. Their logic was that since Parliament has power to make law and they are elected representative of the public, they have right, they know what public wants, what is good for the public, what is bad for the public. So they have every right to make law for the public, for the welfare of the public. So court has no role except to follow that law. It was their argument. But some jurists say no. Parliament is not the supreme. It's the Supreme Court which is supreme. Because once the Parliament made the law, the Supreme Court has power, or the Constitutional Court including High Court has power to interpret the law made by the Parliament. So if the courts have power to interpret or even to struck down that law made by the Parliament or the state legislature,
then the courts become the supreme. And third view is that neither parliament nor Supreme Court is supreme, but constitution is the supreme. Their view is that whether it is a parliament or the Supreme Court, both are the creation of the constitution and both get power from the constitution itself. So constitution gives power to them. In fact, in India, no institution has any power. Whatever power has been given to a particular person or institution, that is given only to fulfill its duty. So पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जाके कानून बना देगी. पार्लियामेंट को ऐसी कोई पावर नहीं हैगी. ना स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी पावर है कि किसी भी आज उसको मन में आया, सपना आया कि इस टॉपिक पे कानून बनाते हैं, ऐसा भी नहीं हैगा. Parliament and state legislature can legislate law only on those subjects which are specifically mentioned in the Constitution. Have you heard about the 7th schedule? No. In Constitution there is 7th schedule. उसमें 3 लिस्टें आएगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. लिस्ट 3 में 97 आइटम्स हैं टोटल, जिसमें प्रमुख आइटम्स वो हैं जैसे रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन एसेट्रा, विच इज रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री. सो उस पर जो पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक लॉज. सो पार्लियामेंट कैन मेक ओनली लॉ ऑन दोज सब्जेक्ट ओनली, दैट इज 97 सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द लिस्ट 1. सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ आल्सो पावर टू मेक लॉ, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल क्लास एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन है. दिस आर द मैटर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ. तो स्टेट गवर्नमेंट रेलवे के ऊपर कानून नहीं बना सकती, डिफेंस के ऊपर कानून नहीं बना सकती. तो स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, आपको कई बार लगता है कि यार एक सब्जेक्ट है, इस लिस्ट में भी आ जाएगा, इसमें भी आ सकता है, कुछ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्होंने सबको लिस्ट 3 में डाल दिया है. और ये कहा है कि इन सब्जेक्ट्स पे दोनों स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ. सो द थर्ड व्यू इज दैट द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन लिस्ट 1 और लिस्ट 3. अदरवाइज पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉ. Parliament cannot make law on the subjects which are mentioned in list 2. Similarly, the state government can make law only those subjects which are mentioned in list 2 or list 3. ठीक है? So Parliament cannot become a supreme. Agree? The Constitution also says Parliament as well as state legislature cannot make any law which violates the provisions of Part 3 of the Constitution. And if they laid down any law which is contrary to the provisions of Part 3, the law to that extent which is contrary to the Part 3, our fundamental right, so that law will be void. Only court can declare that law void. So if the court set aside a law made by the Parliament or the state legislature, can it be said the Supreme Court is supreme? Because Supreme Court derives its power from the Constitution itself. अगर Constitution में ये नहीं लिखा होता कि Supreme Court उस लॉ को void डिक्लेयर कर सकती है, तो क्या Supreme Court उसको void डिक्लेयर कर सकती थी? नहीं कर सकती थी. So meaning thereby neither the Parliament nor the Supreme Court is supreme, but everyone knows about the preamble. But आपको क्या ये बता सकते हैं कि preamble के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था या कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे प्रेम्बल बना है? Whether our constitution was drafted on the basis of preamble or preamble was drafted on the basis of the provisions of the Constitution. Preamble was drafted on the basis of the provision of the Constitution. Any second thought? Generally preamble पहले बनता है. Any कोई second opinion? He is right.
The constitution, the preamble was finalized, not drafted, finalized on the basis of the provisions of the constitution. But there was initial preamble was drafted in 1946, and that you will surprised to note that it was of few lines only. It says the way the people of India seeking to promote the common good do hereby through our chosen representative enact, adopt and give to ourselves this constitution. That was the initial preamble which was drafted by the Constitution Assembly. And when the constitution was drafted on 22nd January 1947, Pandit Nehru, Jawaharlal Nehru, presented the objective resolution before the Constitution Assembly. So I am reading just a few paragraphs of that resolution. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. So clause 4 of that resolution was, wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of the government are derived from the people. तो सारी पावर जो आती है वो पीपल के थ्रू आता है, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है. नेक्स्ट क्लॉज इज wherein shall be guaranteed and secure to all the people of India justice, social, economic, political, equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality. So this basically resolution clause part pertains to the fundamental right, part 3 of the Constitution. Then wherein, next is clause 6 is, wherein adequate safeguard shall be provided for minorities, backward, tribal area and depressed and other backward classes. So this is also related to the part 3. When this objective resolution was presented by the Pandit Jawaharlal Nehru before the Constituent Assembly, he said, I quote, it seeks very feebly to tell the world of what we have thought or dreamt for so long and what we now hope to achieve in their future. हमें संसार को बताते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज तक जो हमने सोचा और सपने ही देखे उसको हम अचीव करने के लिए जा रहे हैं. It is in that spirit I, Pandit Nehru, venture to place this resolution before the House, and it is in that spirit that I, Pandit Nehru, trust the House will receive it and ultimately pass it. And may I, sir, also with respect suggest to you and to the House that when the time comes for the passing of this resolution, let it be not done in the formal way by the raising of hands, but much more solemnly by all of us standing up and thus taking this pledge anew. The above resolution was based on the ideals of our freedom struggles. So whatever the freedom fighters, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल एंड अदर्स, सरदार भगत सिंह, जितने भी लोग थे, जो इनका सपना था, जो उन्होंने तकलीफ़ें सही, उनको पता था कि आम आदमी की क्या हालत है, उनका कोई राइट नहीं था. तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस थे, जो आइडल्स थे जिसकी बेस पे उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको उन्होंने अचीव करने की डिक्लेरेशन दी इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो दैट्स वाई द अनटचेबिलिटी वाज abolished, boundary labor was abolished, and the all discrepancies, the females rights, special rights were given to the females, those who were belong to minority, backward classes. तो इन सबको उन्होंने स्पेशल राइट्स दिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेजोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन was drafted, and on the basis of the provisions of the constitution the preamble was finalized. And we all aware about the preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. पहले 3 ही वर्ड शब्द थे ये, sovereign democratic republic, secular और socialist नहीं था इसके अंदर. And to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship,
equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So इसमें दो वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर. ये कब अमेंड हुए, ये कब इंसर्ट हुए? ये 1976 में बाय वे ऑफ द 42nd अमेंडमेंट. अभी ये मैंने कहा कि जो प्रेम्बल वाज फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and not the constitution was drafted on the basis of the preamble. So why this socialist and secular were added in 1976 by way of 42nd amendment? Because the provisions say so. If we read the entire constitution, let's talk about this socialist part 4 and secular. हर आदमी को ये इजाज़त देता है कि आप किसी भी धर्म में आस्था रखें. कोई आपसे नहीं कह सकता कि आप किस धर्म में आस्था क्यों रख रहे हैं. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. स्टेट हैज़ नो कंसर्न विद द रिलीजन्स. सो विद द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रेम्बल वी कैन से द प्रेम्बल डिड नॉट वॉक बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन द केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इन अमेरिका द प्रेम्बल वॉज फर्स्ट ड्राफ्टेड, देन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड. बट इन इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, देन प्रेम्बल वॉज फाइनलाइज्ड. It was adopted as a part of the Constitution. So preamble is the part of the Constitution. The principles embodied in the preamble were taken mainly from the objective resolutions which were presented by the Pandit Nehru before the Constitutional Assembly. The drafting committee felt it should incorporate the essential features of the new states, that it embodied the fundamental concept of the sovereignty being in the people. अब जब ये preamble बन गया, Constitution बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में से कुछ आवाज़ें उठने लगी कि जो प्रेम्बल में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसकी जगह लिखे वी इन द नेम ऑफ गॉड. जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है वी इन द नेम ऑफ अल्लाह. हमारे में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो दैट ऑब्जेक्शन वाज ओवररूल्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट वर रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इनकंसिस्टेंट विद द फ्रीडम ऑफ फेथ, which was not only promised in the preamble itself but was also guaranteed as a fundamental right. So कुछ अभी भी आवाज़ें उठती हैं कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए या वो राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो कंसर्न. इन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट हैज़ नो रिलीजन. इट इज़ द fundamental right of a person, individual. Today I am Jain, I have a right to become a Christian. From tomorrow I may follow the Christianity. I became a Jew, I became a Sikh. So it's my right. The state has nothing to do with that. स्टेट का काम है कि वो अपना काम करें. अब मैं किस में विश्वास करता हूँ, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, नहीं करता हूँ, उसमें करता हूँ, उससे कोई स्टेट का कोई कंसर्न नहीं है. सो वी आर सेक्युलर इन दैट सेंस. नाउ एक बेरोबारी केस हैगा. अब तक मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार गलतियां करती हैगी. सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल नॉट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज राइट. सुप्रीम कोर्ट इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ फाइनल. देयर इज़ नो अबव कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट. हैड देयर बीन एनी सुपीरियर कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट probably overrules is most of the decisions. In Berubari case, Supreme Court said the preamble is not part of the Constitution. But later on, in Keshwanand Bharti, have you heard about the Keshwanand Bharti? The Supreme Court clarified, no, the preamble is the part of the Constitution. और हम preamble पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होगा we adopt an act on 26th day of November 1949. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्प्लीमेंट हुआ आपका 26 जनवरी 1950. सो हाउ द कंट्री वाज बीइंग रन ड्यूरिंग 26 November 1949 to 26 January 1950. On 26 November 1949, 15 articles came into existence. They were implemented immediately. The 15 articles were Article 5
to 9, Article 60, Article 324, Article 366, 367, 379, 380, 388, 391 to 393, and this is mentioned in Article 394 of the Constitution. उसमें 15 आर्टिकल का जिक्र है जो 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट हो गए थे। आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक क्या है, जो हमारी सिटीजनशिप को प्रिस्क्राइब करते हैं। आर्टिकल 60 कहता है कि इस देश में एक प्रेसिडेंट होगा, ऑफिस होगा। आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू दी इलेक्शन कमीशन। बड़ा आज कल आप सुन रहे होंगे इलेक्शन कमीशन। पर्पज़ ये था कि भाई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको इलेक्शन कराने हैं। अगर आप 50 में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो इलेक्शन फिर और डिले होते हैं, तो सेटअप करके आपने इलेक्शन की तैयारी साथ साथ कर दी। और बाकी के आर्टिकल है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि कैसे होगा, और कुछ ट्राइबल एरियाज़ के लिए थे प्रोविजन थे। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार गलतियां करती है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट की खासियत है वो अपनी गलती मान लेती है, उसको रेक्टिफाई भी करती है। नाउ इफ आई से वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स आवर लाइफ और नॉट, व्हाट यू विल से? इट्स अफेक्ट्स आवर लाइफ, अफेक्ट्स आवर लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट ओनली पीपल ऑफ इंडिया which gives power to the ruling party regime, and everyone gets the power from the constitution itself, and it talks about the fundamental rights, so it affects our life and liberty also. The constitution affects the life of 1.4 billion people of this country. It gives an identity to us. आज हम citizens ऑफ इंडिया क्या, वो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1947 को जो पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है, चाहे कहीं भी, कैसे भी, किसी का भी रिलीजन का हो। इट डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ नो प्लेस इन दिस कंट्री। इट डिक्लेयर्स दैट बॉन्डिंग लेबर इज नो मोर टॉलरेबल इन द कंट्री। इट गिव्स अ न्यूमरस फंडामेंटल राइट्स सच एज इक्वलिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ अंडर आर्टिकल 15, equality of opportunity in public employment under Article 16, protection of certain rights regarding freedom of speech under Article 19, protection in respect of conviction for offences under Article 20, protection of life and personal liberty under Article 21, protection against arrest and detention under Article 22, right against exploitation under Article 23, 24, right to freedom of religion under Article 25 to 28, culture and educational rights under Article 29 and 30. It also provides, it not only provides the right without remedy is meaningless, totally meaningless. The Constitution also provides a remedy to approach the highest court, that is Supreme Court under Article 32, and to the High Court under Article 226 in case the state violates the fundamental right of a person. Since the Constitution can affect our life in a significant way, it becomes our duty to know the limitation of the Parliament, to what extent the Parliament can change the Constitution. Am I right? आज तो वैसे भी 20 जुलाई है। We are all aware of the Sonam Wangchuk, what is going on Jantar Mantar. So it is not the person is sitting on the hunger strike and you take him to forcibly to the hospital. But deals about the main issue is the fundamental right of a person. Can you detain a person forcibly? Can you compel him to take the treatment against his advice, against his wishes? Can you detain him in the garb of treatment? Can you restrain him to meet his family, to communicate with the rest of the world, because he is getting treatment under the supervision of the government of India? So these are certain questions which talks about the very basic questions relating to our fundamental rights. So all these questions will be dealt by the court, hopefully. Let's wait what the court says. Have you heard about the IC Golaknath case? नहीं सुना। मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी गलतियां करती है, and IC Golaknath is a best example what the Supreme Court had did in 1971 and how it rectified his mistake in Keshavanand Bharati case. In all,
इन IC गोलकनाथ केस डिसाइडेड बाय द 11 जजेस बेंच, 11 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 एज आर्टिकल 360 ओनली प्रोवाइड्स द प्रोसीजर एंड नॉट गिव्स एनी पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 368 ओनली गिव्स prescribe the procedure how the constitution can be amended. It does not give power to amend the constitution itself. अगर ऐसा है तो फिर पावर कहाँ पर है, क्वेश्चन राइज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज अंडर एंट्री 97 लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल। एंट्री 97 है, ए रेजिडुअल क्लॉज है, 1 to 96 में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं और 97 में लिखा हो कि एनी अदर सब्जेक्ट which are not mentioned in the list 1. So amendment of the constitution is not mentioned in item number 1 to 96. So Supreme Court say कि amendment of the constitution not mentioned in item number 1 to 96, so it lies in entry number 97 in residual clause. So Supreme Court can amend the constitution under that power. Now the parliament has two type of powers. एक legislative power है जिसमें कानून बनाती है, आम कानून जैसे बनाते हैं। एक है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन करती होगी। जो लेजिस्लेटिव पावर हैगी पार्लियामेंट की वो है आर्टिकल 245 से 248 में डिसाइड मेंशन की है। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पावर है, जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट, वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। मीनिंग देयर बाय कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं बना सकती। और आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल को राइट्स को वायलेट करता है तो कानून उस टू दैट एक्सटेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। सो मीनिंग देयर बाय अंडर द लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है अभी सिंस द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज अंडर entry 97 of list 1 of 7 schedule. So under the legislative power, parliament cannot amend the constitution which can violate the provisions of the fundamental right. ठीक है? Meaning thereby the parliament cannot abrogate or abolish our fundamental right. ये IC गोलकनाथ केस का जजमेंट था। अब ये जजमेंट से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये तो मुश्किल होगी, हमारी पावर आपने लिमिट कर दी, ये तो बड़ी। और ये जो आप बेसिक हम पढ़े हैं 368 तो उसमें ऐसा लिखा भी नहीं हुआ है। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट 24 एंड दैट अमेंडमेंट केम चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। अब केशवानंद भारती के पहला डिसीजन 11 जजेस का था, इसमें फिर उन्होंने 13 जजेस की एक स्पेशल बेंच बिठाई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी टोटल 14, तो 13 जजेस ने ये फैसला सुना। इसमें एक और कमाल की बात है, जब IC गोलकनाथ था 11 में से 5 और 6 का फैसला था। 6 ने कहा कि पार्लियामेंट की पावर नहीं है, 5 ने कहा नहीं पार्लियामेंट की पावर। 368 प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर एज वेल एज पावर आल्सो मेंशन इन द आर्टिकल 368। तो ये भी जो केशवानंद भारती का 7 और 6 का था। तो 7 जने कहते हैं कि पार्लियामेंट, बल्कि अपनी 7 से तो उसमें ज़्यादा ही कहते हैं। अब उसमें ये केशवानंद भारती में 2-3 इशू आए, वो मैं आपसे डील करूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी गलतियाँ करती हैगी। अब सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या आर्गूमेंट हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि सरकार क्या सोचती है इस देश के नागरिकों के बारे में। वो कहती है, सरकार कहती है, पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन कन्वर्ट इंडिया इनटू ए मोनार्की और एनी अदर सिस्टम। इट कैन एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स। सो सरकार का ये व्यू भी था कि हम इसको डेमोक्रेसी से मोनार्की सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्या ये हमारी परमिसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
ये बीइंग सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट की लिमिटेशन क्या आएगी. सो दैट वाज द मेन इशू. एंड सम ऑफ द जजेस सेड इन द सुप्रीम कोर्ट, इन केशवानंद भारती, the parliament has power to change the structure of the constitution step by step. They can convert from democracy to monarch. But most of the judges has rejected this contention in toto. So it is very important for us to know what is the limitation of the parliament, how can they change our life, to what extent they can change our life. So first off, Supreme Court clarifies that the power to amend the Constitution lies under Article 368 and not under Entry 97, List 1 of the 7th Schedule. So I.C. Golaknath judgment was overruled to that extent. Supreme Court further said that when the Parliament and the state legislature legislate a law under Article 245 to 248, they enact law in a legislative power which is subject to the provisions of Constitution. So Article 13 clause 2 apply on those law, and the Parliament and the state legislature cannot enact any law which is contrary to the provisions of the Part 3 of the Constitution. And if there is a contravention, the law to that extent will be void. So to that extent, again, the I.C. Golaknath was overruled. Supreme Court फर्दर से दिस लॉ मीन्स द आर्टिकल 13(3) में डिफाइंड की लॉ कौन कौन से होते हैं. उसमें लॉ का मतलब है कि ऑर्डिनेंस हो गया, नोटिफिकेशन होगी, ऑर्डर हो गया, लॉ हो गया, रूल हो गए, रेगुलेशन हो गए, कस्टम, यूसेज, बट नॉट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट का दी लॉ का मतलब जो है, दो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज ऑल्सो ए लॉ, बट द लॉ एज रेफर्ड इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दियागा और I.C. गोलकनाथ केस को ओवररूल कर दियागा. नाउ अब इशू हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, मेन इशू जो आया, वेदर पार्लियामेंट बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एब्रोगेट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अपील द कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर. ये मेन इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने अराइज होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया कि जो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो लेके आती है सरकार 368 में, उस पर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं करता है. सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस वेदर द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू एब्रोगेट our fundamental right or to repeal the constitution as a whole or to change its basic structure. तो इससे क्वेश्चन को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आर्टिकल 368 कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? टू चेंज और टू डिस्ट्रॉय और टू मॉडिफाई. टू मॉडिफाई. सो इफ द amendment, meaning of amendment is limited, so it means the parliament cannot do very much under article 368. It can only modify some provisions or bring some changes to give effectiveness of that provisions or to the spirit of the constitution, and cannot altogether change the constitution. अब आर्टिकल 368 आप पढ़ेंगे तो उसमें से दो तरह से अमेंडमेंट पास होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो कुछ जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे वो भाई उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर इन बोथ हाउसेस चाहिए. सो अभी आपने देखा कि हर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो ट्राई कर रही है कि किसी तरह के 2/3 मेंबर्स पार्लियामेंट में आ जाएं. द पर्पज इज़ दैट ओनली कि वो जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाने जाते हैं वो अमेंडमेंट लेके आ सकें. लेकिन कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे होंगे जो आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ वो अमेंडमेंट को अप्रूव करना है 1/2 स्टेट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंटायर कंट्री. अगर हमारे पास 30 स्टेट हैं तो 15 स्टेट से वो पास होना जरूरी है. ठीक है. तो उसमें से एक आर्टिकल हैगा आर्टिकल 54 and 55 विच डील्स विद elections of the president, which says it needs the ratification of amendment at least from 1/2 of the state legislature.
ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट में अगर कोई अमेंडमेंट लेना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, उस प्रोविजन में कोई वो अमेंडमेंट करना चाहती है, तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा? पहले तो दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर उसको हिंदुस्तान के जितने स्टेट हैं उसके हाफ स्टेट से वो रेटिफाई होना चाहिए, तब आप उसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस चेंज कर सकते होगे। लेकिन एक आर्टिकल है 52, वो कहता है टॉक अबाउट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफिकेशन चाहिएगी, अप्रूवल चाहिएगी। तो मीनिंग देयर बाय अगर पार्लियामेंट चाहे तो कह दे भी कल से प्रेसिडेंट ऑफिस की जरूरत नहीं, हमें प्रेसिडेंट का ऑफिस बंद अबॉलिश कर दिया हमने। तो 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, हमने कह दिया कि कल से हमें प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं चाहिए। नाउ द ओनली प्राइम मिनिस्टर विल रूल द कंट्री, वी डोंट नीड एनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, वे प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करता, तो नाउ प्राइम मिनिस्टर विल डू इट। तो क्या ये हो सकता है? क्योंकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको अगर इफ़ यू वांट टू अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू नीड ओनली 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस, you are not required ratification of one of the states। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने ये सोचा भाई ये जो आर्टिकल 52 है तो परमानेंट है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, ये हो सकता है। दूसरा वो ये भूल गए हों कि भाई ये इसको हमने, इसके लिए भी हमें 1/2 ऑफ द अप्रूवल चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी हो सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जो इतना बड़ा इशू डील कर रहे थे, जो इलेक्शन को तो डील कर रहे थे प्रेसिडेंट हाउस की ऑफिस के, बट उसके ऑफिस को डील करना भूल गए। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसे वो बहुत सारे एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो दिखाता है कि जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की पावर है, जो वर्ल्ड है जो अमेंडमेंट, इट इज क्वाइट लिमिटेड, इट्स मीनिंग इज लिमिटेड मीनिंग। अगर पार्लियामेंट 2/3 में से अगर आपको प्रेसिडेंट को निकाल देगी बाहर तो फिर तो क्या होगा? कल को तो पार्लियामेंट कहेगी अब इलेक्शन 15 साल में एक बार होंगे, हर 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होंगे, या 25 साल बाद इलेक्शन होंगे। कैन पार्लियामेंट डू दैट? तो ये इशू जो हैं ये हमारी लाइफ से अब हमें अफेक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है कि हम गवर्नमेंट को चुने। हमसे वो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में देता है, क्या वो हमसे छीन जा सकती है क्या? अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा देन शुड वी रेज द वॉइस और नॉट? वॉइस ये हमारी कितनी भी कमज़ोर हो, बट वन शुड रेज वॉइस, क्योंकि कमज़ोर वॉइस मिलके एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो अमेंडमेंट का मतलब है ये इज नॉट ए वाइड, इट्स ए वेरी रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। देन सुप्रीम कोर्ट अगेन इंटरप्रेटेड, सुप्रीम कोर्ट says that article 368 says the parliament can amend any of the provisions of the constitution। so क्या amend कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट? any provisions of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या किताब है क्या खाली, या समथिंग मोर देन ए बुक? मोर देन ए बुक। सो जब आप अमेंडमेंट करें तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन रहे। ऐसा ना हो कि अमेंडमेंट करने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल जाए, कोई एक नया रूप ले ले। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भाई जब आपकी पावर है, यू कैन नो डाउट यू हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी प्रोविजंस इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ द आवर फंडामेंटल, यू कैन अमेंड दैट, बट आफ्टर अमेंडमेंट इट शुड रिमेन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सुप्रीम कोर्ट इसको डील करती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 22 पार्ट्स हैं। सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट कहे, नहीं पार्लियामेंट कहे हमारे 30 स्टेट हैं, हमें 30 स्टेट की क्या जरूरत है भाई?
हम इसका एक ही स्टेट बना देते हैं, एक ही चीफ मिनिस्टर बनाएगा, एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, और 5 स्टेट बना देते हैं हम खाली। हम 5 स्टेट बनाते हैं, तो ये इससे क्या होगा, हर स्टेट को वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट चुनने की पावर रहेगी। जो स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ स्टेट में इलेक्शन होते हैं, जो उनके एमएलए होते हैं, उन वो भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, उसमें वोट डालते हैं। अगर जब तुम स्टेट ही ख़त्म कर दोगे तो उनका राइट ख़त्म हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से काम करने लगोगे। पार्ट 2 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, जो बताता है कि इस देश में कौन सिटीजन होगा, कौन नहीं होगा। पार्ट 3 टॉक्स फॉर फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 टॉक कास्ट ड्यूटी ऑन द स्टेट, हाउ इट विल गवर्न द कंट्री। पार्ट 5 टू पार्ट 9 डील्स विद द सेपरेशन ऑफ पावर। स्टेट की क्या पावर होगी, सेंटर की क्या पावर होगी, जुडिशरी क्या पावर होगी, और म्यूनिसिपल अथॉरिटी क्या पावर होगी। ये पार्ट 5 to 11 में है। पार्ट 15 डील्स विद द इलेक्शंस। सो दीज आर द सम बेसिक्स एसेंस ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So if Article 368 gives power to Parliament to amend any provision of the Constitution, it means that after the amendment, Constitution should remain Constitution of India, and it will remain Constitution when the amendment will not change its basic structure or essence of the Constitution, which includes that India will remain a union of a state. It gives citizenship to its citizen. It gives some fundamental rights. It casts a duty on the state how it will govern the people of this country. There will be a separation of power between center and state, and there shall be independent judiciary, which shall have power of judicial review, meaning thereby which shall have power to strike down the law which are contrary to the provisions of the Part 3. There shall be an independent election commission, and there shall be a president, and all acts shall be done in his name. The Constitution states power vests in the people of this country, and India is a democratic, sovereign, secular, and socialist country. So, the Supreme Court held the expression amendment of the Constitution in Article 368 means any addition or change in any of the provisions of the Constitution within the broad contours of the preamble and the Constitution to carry out the objective of the preamble and the directive principles applied to fundamental rights. It would mean that while fundamental rights cannot be abrogated, reasonable abridgment of fundamental rights can be effected in the public interest. So आर्टिकल 19 में आपने देखा होगा 19(1) में फंडामेंटल राइट्स प्रिस्क्राइब हैं, और 19(2) to 6 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैगी। आपको बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब नहीं कि आपको गाली देने की आज़ादी हैगी, किसी को डिफेम करने की आज़ादी हैगी, आपको प्रोफेशन करने की आज़ादी है, इसका मतलब ये है कि आप कोई गैर कानूनी काम करना शुरू कर दें। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) से लेके 6 तक में वो प्रिस्क्राइब की हुई है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, द ट्रू पोजीशन इज दैट एवरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड टिल इन द रिजल्ट द बेसिक फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सेम. The basic structure may be said to consist of the following features. तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उस वक्त 1973 में कुछ बताए, और बाद में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करने शुरू करते उसमें. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रहेगा, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The above structure is built on the basic foundation, that is the dignity and freedom of the individuals. This is the supreme importance. This cannot by any form or amendment be destroyed. So Supreme Court ने कहा भी अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहाँ जहाँ आपको डाउट है वहाँ वहाँ आप प्रीम्बल का सहारा ले सकते हैं टू इंटरप्रेट दी अमेंडमेंट कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. सो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस. होप आप बोर नहीं होंगे.